السلام علیکم، وائس آف دنیا شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز اور لارڈ احمد ڈاکٹر معید کا ساتھ مجھے پروگرام میں حسب معمول حاصل ہوگا۔ صورتحال کیا ہے بدلتی دنیا کی؟ وہ یوں کہ ترکی کے اور ہالینڈ کے درمیان کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سابق سفیر حسین حقانی کی جانب سے ایک بار پھر پیٹنے کو ایک لکیر دے دی گئی ہے، جس کا اب کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں، اس پر ہم اپنے اینالسٹ سے ان کی رائے جانیں گے۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کیا ہم بات کی گئے ہفتے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن سر فہرست ہمارے آج کے شو میں ہے بریگزٹ کا معاملہ۔ اس پر اب تک کیا ہوا، رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کی راہ ہموار کر چکا ہے۔ یورپی باشندوں کے قیام کے لیے ہاؤس آف لارڈز کی کوششیں برابر نہ ہو سکیں اور بریگزٹ بل کسی ترمیم کے بغیر پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا۔ Contents 118, not contents 274. So the not contents have it. Last night, the bill on Article 50 successfully completed its passage through both houses unchanged. It will now proceed to royal assent in the coming days, so we remain on track. ٹوری حکومت نے بریگزٹ بل پر جس طرح دونوں ایوان کا تقدس مجروح کیا، اس پر سابق ڈپٹی وزیر اعظم بھی نالاں ہیں۔ It's honestly, the 12 years I've been an MP, I've never seen a government behave in such a dogmatic and high-handed way towards Parliament. I thought the whole point of Brexit, this is what the Brexiteers said, was restoring sovereignty to this great place, not undermining it. یورپی باشندوں کو نکالنے کی خواہش مند حکومت کا یورپ میں مقیم برطانوی شہریوں کا احساس مضاحکہ خیز ہے۔ We will not do anything which will undermine the national interest, including the interests of British citizens living in the European Union, and we will not enter the negotiations with our hands tied. آرٹیکل 50 کے استعمال کے لیے بیکنگم پیلس کی خوشنودی کا انتظار ہے، لیکن یوکیپ کے صدر آرٹیکل 50 کو ٹریگر ہوتا دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ Well, I would like to have seen Article 50 triggered in July of last year, because if that had happened, there would have been no High Court, no Supreme Court, no votes in the Commons and the Lords. So I think there's been hesitancy all the way through. ادھر یورپی یونین کے بڑے بھی سخت موقف لیے برطانیہ کے منتظر ہیں۔ We are well prepared for the whole procedures, and I have no doubts that we will be ready in 48 hours. This is the moment for Europeans to show their colors. دوسری جانب بریگزٹ کی ناقد اسکاٹ لینڈ حکومت 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو سخت پیغام دے رہی ہے۔ I will now take the steps necessary to make sure that Scotland will have a choice at the end of this process. A choice of whether to follow the UK to a hard Brexit or to become an independent country, able to secure a real partnership of equals with the rest of the UK. فضامی کو یہ بات خاصی ناگوار گزری۔ The tunnel vision that the SNP has shown today is deeply regrettable. It sets Scotland on a course for more uncertainty and division, creating huge uncertainty. لیکن لیبر قیادت کو اعتراض نہیں۔ A referendum is held, and it's absolutely fine. It should be held. It's not. I don't think it's the job of Westminster or the Labour Party to prevent people holding referenda. I do think we should set it in the context of the economic relationship with the rest of the UK. اسکاٹ لینڈ کو دیکھ کر شمالی آئرلینڈ اور ویلز سے بھی علیحدگی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بریگزٹ بل کے منظوری کے فوری بعد پاؤنڈ گزشتہ 8 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گیا، جبکہ حکومت معاشی اشاریوں کی بہتری کے لیے نئے افق ڈھونڈ رہی ہے۔ Having our horizons widened beyond the European Union. As I've often said, we're not leaving the EU, we're rejoining the rest of the world. تازہ رپورٹس کے مطابق انخلا کی قیمت 60 ارب پاؤنڈز تک ہو سکتی ہے، لیکن اصل تخمینہ 2 برس بعد یورپی یونین کی آڈیٹرز کوٹ کرے گی۔ وزارت خزانہ کی لیک رپورٹ کے مطابق ڈیل کے بنا انخلا برطانوی معیشت کی چولیں ہلا دے گا۔ اس رپورٹ نے سارا لب لباب بیان کر دیا، لیکن لارڈ احمد سے ہم یہ جانیں گے کہ کیوں ہاؤس آف کامنز کے سامنے ہاؤس آف لارڈز بے بس ہو گئے اور ماننی پڑ گئی ہاؤس آف کامنز کی؟ کیوں لارڈ احمد؟ کیونکہ ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ الیکٹڈ چیمبر ہے اور ہاؤس آف لارڈز الیکٹڈ نہیں ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہاؤس آف کامنز ہے
उसने कोई अमेंडमेंट नहीं की। जिस तरह गवर्नमेंट ने उस बिल को वहां पे प्रोड्यूस किया, ऐसे ही बगैर अमेंडमेंट्स के उन्होंने वो बिल जो है वो पास करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा। तो यहां पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 2 सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुई, उसमें पूरे बरतानिया में एक सियासी डिबेट शुरू हो गया था। एक तो पहले ये था कि जो यूरोपियन यहां पे 3-4 मिलियन रहते हैं या जो ब्रिटिश यूरोप के अंदर रहते हैं, उनके जो राइट्स हैं और उनको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट गारंटी दे कि वो उनको ना यहां से निकालेगी, उनकी जॉब्स भी और उनकी इमिग्रेशन को इफेक्ट होगा, ना ही हमारे जो सिटीजन हैं उनको। और दूसरी बात जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी कि पार्लियामेंट को ये जो है वो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की देनी होगी कि वो जब इसको अग्रीमेंट को साइन करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले पार्लियामेंट के पास आएंगे और पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल जो है वो ओवरसी करेगी। लेकिन अगर आप देखें ना तो इसकी अटेंडेंस जो फाइनल वोट था उसमें लेबर ने विथड्रॉ कर दी थी सपोर्ट। पहले सबसे हाईएस्ट, ये आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 1885 से लेकर इतनी बड़ी अटेंडेंस कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं हुई जब गवर्नमेंट को डिफीट 100 से ज्यादा वोट से किया गया। लेकिन क्योंकि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेगोशिएट करती हैं, उनसे एश्योरेंसेस लेती हैं, उनसे कोई और जो है वो कंप्रोमाइजेस करवा लेती हैं। पता नहीं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान क्या एग्रीमेंट हुई, लेकिन जिस दिन ये फाइनल उसका था डिस्कशन ओवरसी पार्लियामेंट की, उस दिन जो है वो तकरीबन 450 350 से ज्यादा वोट्स जो पहले थी इसकी कंटेंट वाली, वो 120-25 तक आ गई। वो उसकी वजह यही थी क्योंकि लेबर पार्टी और फिर जो क्रॉस बेंचेस वगैरह और इंडिपेंडेंट मेरे जैसे लोग जो है उन्होंने भी वोट नहीं दी। अब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इसको परस्यू कर रही है, तो उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है कि 31 से पहले वो आर्टिकल 50 को इन्वोक करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डॉक्टर मोहित पूछना चाह रहे हैं। लॉर्ड अहमद, मेरे ज़हन में सवाल ये है कि ठीक है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने थेरेसा मे को सपोर्ट करना था ब्रेक्सिट पे, और हुकूमत वो करना चाहती है जो प्राइम मिनिस्टर करना चाहती है, जो उनकी कमिटमेंट है। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन में कोई अमेंडमेंट ना हो सकी इस बिल में, जहां लेबर भी है, बैक बेंचर्स भी हैं, प्रो यूरोपियंस भी हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तो यह है कि लिबरल डेमोक्रेट्स चाहते थे कि इसमें अमेंडमेंट्स हों, और कंजर्वेटिव पार्टी में इतनी रिबेलियन नहीं थी कि लिबरल डेमोक्रेट्स लेबर को मिला के भी वो वहां पे उसको शिकस्त दे सके। वो ये चाहते थे कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आके गवर्नमेंट को, क्योंकि सच्ची बात यह है कि लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स की नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो स्टिल चाहते हैं कि रिमेन के लिए कोई ना कोई तरीका हो सके, लेकिन लेबर जो है वो ऐसे श्योर नहीं है। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर रहे, ये चाहते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करते रहें, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि जो ब्रिटिश नेशनल इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचे। तो वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इजाजत दी जाए कि ये जो, क्योंकि एक्चुअल जो बात है वो ये है कि द विल ऑफ द पीपल, 52% लोगों ने वोट दिया। अगर उसको ये अपोज करते हैं तो अगले इलेक्शन में ये आर्ग्यूमेंट होगी कि विल ऑफ द पीपल को इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसकी बाद में उन्होंने मुखालफत की, लिहाजा इनको गवर्नमेंट के लिए कभी भी ये फिट नहीं है, कभी इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो ये एक्चुअल रिस्पेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल की बात थी। अच्छा, विल ऑफ द पीपल अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉर्ड अहमद आपने वो एक्सप्लेन किया, लेकिन डॉक्टर मुईद अगर हम स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो वो स्कॉटलैंड की कोशिशें ये हैं कि वो बजाय ये कि यूरोपियन यूनियन से इनखला को तरजीह दे, वो बरतानिया से अलग होने को तरजीह दे रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम की जो यूनाइटेड अप्रोच है उसको भी नुकसान पहुंचने का खदशा है इसके बाद। देखिए, खदशा तो है, लेकिन मैं हाल ही में देख रहा था कि थेरेसा मे जो हैं वो समझती हैं कि बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकेगा। और जब भी स्कॉटिश लोग फैसला करने पे आएंगे तो वो इस किस्म का फैसला जो है वो नहीं करेंगे। दूसरा, गालिबन उसमें एक दिक्कत और रुकावट ये भी है कि यूरोपियन यूनियन के जो कवानीन हैं
اس کے تحت بھی جو ایک ایگزٹنگ یعنی اگر اسکاٹ لینڈ ایگزٹ کرتا ہے برطانیہ سے ایگزٹ کرتا ہے تو کیا وہ یورپین یونین کا ممبر بن سکتا ہے؟ غالباً اس کے راستے میں بھی بہت سی دشواریاں ہیں. لارڈ احمد اس کی زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ٹیکنیکل اور لیگل یا کانسٹیٹیوشنل رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ایک سیسیڈنگ اسٹیٹ جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتی یورپین یونین کا. جی لارڈ احمد وضاحت کیجیے گا. وہ صحیح بات ہے کہ کیونکہ اگر جب تک اسی لیے اسکاٹش نیشنلسٹ نے تھریٹ یہ کیا کہ وہ یونائٹڈ کنگڈم سے الگ ہونا چاہتے ہیں یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کمپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کیونکہ ان کی جو اکانومی انٹیگریٹڈ ہے ہمارے لوگ انٹیگریٹڈ ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ پنجاب کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہو رہے ہیں یا سندھ کہے کہ وہ پاکستان سے الگ ہو رہے ہیں تو وہ اتنی آسان بات نہیں ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے اور کیونکہ اسکاٹش نیشنلسٹ کی بیسز یہی ہے کہ وہ اپنی نیشنلزم کو دکھاتے ہوئے اپنے لیے گڈ ڈیل جو ہے وہ کروا سکیں اور کوئی انسینٹیو اس میں آ جائے کہ بھائی اسکاٹ لینڈ کو اجازت دی جائے کہ وہ کچھ ڈیلز جو ہیں وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اوور آل آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد جب یہ ساری ڈسٹ سیٹل ہو جائے گا تو یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ میرے خیال میں مشکلات میں نہیں ہوگا. لانگ رن جو ہے یہ جو پاؤنڈ کی ڈی ویلویشن ہے اس میں ہمارے ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑا فرق پڑا ہے وہ بہت ساری بہتر ہو گئی ہے. ایسے ہی امپلائمنٹ کافی بہتر ہو گئی ہے ان امپلائمنٹ بہت کم ہو رہی ہے. تو اس طرح ٹھیک ہے پاؤنڈ ڈی ویلیو ہوا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ باہر پاکستان دوسرے افریقہ دوسرے ملکوں میں پاؤنڈ بھیجتے تھے ان کے لیے انسینٹیو کم ہو گیا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے کرنسی کی ویلیو عربز کی جو ریال ہے یا درہم ہے یا جو بھی اس کی ویلیو ان کو زیادہ ملے گی بجائے کہ وہ امریکہ جائیں وہ لنڈن میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سملرلی جو چائنیز اور انڈین یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اوور آل اکنامک جو فائدہ ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کو اسکاٹ لینڈ اور یہ جو ویلز اور آئرلینڈ کا نیشنلسٹ اس میں شور مچاتے رہیں گے. میرے خیال میں اوور آل ابھی میں نے وہ نہیں دیکھی ایسی موومنٹ کے معاملات ہوں یا جو اکانومی کے معاملات ہیں اس سے پیوستہ وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ہی ان کی تشریح کی جا سکے یا انہیں سہل بنایا جا سکے کہ اس کو کوئی سمجھ سکے. لیکن لارڈ احمد نے خاصی رہنمائی کر دی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دنیا بھی ایک مخمصہ ہے کہ کوئی یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتا ہے اور کوئی یورپی یونین سے انخلا چاہتا ہے. انخلا کی بات تو ہو گئی لیکن حصہ بننا چاہتا ہے ترکی. معاملات اس کے برعکس جا رہے ہیں کہ یورپی یونین کا حصہ بننے کا خواہش مند ترکی ہالینڈ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. جرمنی اور فرانس کے ساتھ بھی اس وقت پنگا چل رہا ہے اور سینگ پھنسا بیٹھا ہے ترکی. ان معاملات میں ہوا کچھ اس طرح کے معاملات اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خاصے سخت قسم کے بیانات دیے اور فاشسٹ قرار دے دیا. لارڈ احمد رہنمائی کیجئے گا اب جو ترکی ہے اس کا رویہ ان ممالک کی جانب کس حد تک حق پر ہیں ترک صدر اور کس حد تک کون ذمہ دار ہے ان معاملات کا؟ اچھا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہے کیونکہ ترکی پوری کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بنے لیکن اب کیونکہ ٹینشن یورپ کے ساتھ ترکی کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یورپین یونین کا حصہ بننا ان کے لیے بہت دور کی بات ہے. لیکن ترکی کے بغیر یورپ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی نیٹو کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور ترکی کے ساتھ ٹریڈ ترکی کے لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت بڑی ڈسکشن اور پھر خاص طور پہ جو سیکرٹ ڈیلز ہوتی ہیں ترکی کی
एंजेला मर्कल जो हैं वो तुर्की के खिलाफ बड़े सख्त बयान देती थी, लेकिन अभी इमर्ज हुआ है कि उन्होंने सीक्रेट डील जो है वो तुर्की के साथ की जो यूरोपियन यूनियन से अलग थी, और वो ये जो रेफ्यूजीज हैं इनके हवाले से कि आप रेफ्यूजीज को वहां पे अकोमोडेट कर लें तुर्की के अंदर, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप क्योंकि इनकी अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो खराब हो रही थी। अब ये हॉलैंड जो की बात हो, डच जो सिचुएशन है, हॉलैंड की जो बात है, इसमें थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अर्दोगान साहब जो तुर्की के अंदर रेफरेंडम हो रहा है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वो लाना चाहते हैं जिसमें उनको पावर ज्यादा हो और उनकी जो मुद्दत है वो एक्सटेंड हो सके एज प्रेसिडेंट और उनकी ग्रिप ज्यादा हो सके। ऐसे ही हॉलैंड के अंदर जो है वो इलेक्शन हो रहे थे जिसका रिजल्ट कल हुए हैं, जिसके रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं, और यहां पे गिर्ट वाइल्डर्स जो हैं उनको काफी जो है वो पॉपुलैरिटी नजर आ रही थी, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो लिबरल प्राइम मिनिस्टर जो लिबरल पार्टी के हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो दोनों साइड्स जो हैं वो पॉपुलिस्ट वोट को खुश रखने के लिए एक तो नेशनलिज्म दोनों तरफ से हो रही थी, यानी तुर्की वाले भी नेशनलिज्म कर रहे थे, उन्होंने मिनिस्टर वहां पे भेजे, मिनिस्टर भेजी जो उन्होंने एड्रेस करना था, क्योंकि यहां पे जो रेसिज्म हो रही है तुर्किश लोगों के खिलाफ, और फिर वो तुर्की वालों को उस रेफरेंडम की जो है वो सपोर्ट के लिए कहने के लिए वो मिनिस्टर साहिबा यहां पे आ रही थी। ऐसे ही गर्ट वाइल्डर्स और यहां की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि भाई ये यहां पे खतरा है, आप इतने लोग जमा होंगे, हम इसकी सेफ्टी नहीं कर सकते, यहां पे कोई राइट विंग फैशिस्ट ग्रुप आ सकता है, यहां पे टेररिज्म का कोई हादसा हो सकता है। इन एनी केस ये आपका मसला है, ये तुर्की का मसला है, जाके तुर्की में आप इतनी बड़ी मीटिंग्स रखें, आप यहां हमारे मुल्क में क्यों रखना चाहते हैं? तो उसमें फायदा जो है वो लिबरल्स को हुआ, क्योंकि इन्होंने इनको बैन किया। ठीक है, तुर्की वालों को भी होगा, मैं उस पर भी आता हूं। तो उन्होंने जब तुर्की वालों को बैन किया तो वो प्राइम मिनिस्टर ने किया, गवर्नमेंट ने किया। अगर गवर्नमेंट कमजोर होती और वो उसको अलाउ करती तो गर्ट वाइल्डर्स जो है फ्रीडम पार्टी वो उसको गेन मिलती, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे अटैक करती कि देखें तुर्क्स को इतनी इजाजत दी गई, तुर्क्स यहां पे ये कर रहे हैं, हमारा कल्चर खराब हो गया है, हमारी सियासत खराब हो गई है, उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी यहां हमारे मुल्क में होती हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने बैन किया और बैन करने के बाद उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया, जिसकी वजह से जो फ्रीडम पार्टी है उसकी वोट्स, उसकी जो पार्लियामेंट्री सीट 19 एक्सपेक्ट हो रहे थे 20 तक चले गए, लेकिन लिबरल प्राइम मिनिस्टर आप दुरुस्त समझते हैं हॉलैंड के इस इकदाम को? देखिए, लॉर्ड अहमद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि यूरोपियन जो हैं उनकी बुनियादी वजूहात क्या थी, चूंकि वहां पे राइट विंग पार्टीज इलेक्शन में हैं और वो राइट विंग पार्टीज जो इंतहा पसंद जमाते हैं यूरोप के अंदर वो तुर्कों के बहुत खिलाफ हैं, मुसलमानों के और तुर्कों के, और वो उसको एक इलेक्शन एजेंडे के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। अगर तुर्की के मिनिस्टर्स अपनी रेफरेंडम रैलीज से वहां खिताब कर सकते तो जैसा कि लॉर्ड अहमद ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, इससे इंतहा पसंद जो थे यूरोपियन पॉलिटिक्स में उनको फायदा होता, और इसी वजह से यूरोप की हुकूमतें जो हैं उन्होंने इस किस्म की रैलीज की हॉलैंड ने इजाजत नहीं दी। अब जो दूसरा एंगल लॉर्ड अहमद ने नहीं समझा नहीं सके वो ये है कि तुर्की को क्या फायदा हो रहा है। तुर्की को ये फायदा हो रहा है कि तुर्की के सदर जो हैं वो भी 15 बरस से देखें वो ताकत पे अपना और अपने खानदान का पहले से ज्यादा डीप और डीपली एंट्रेंच एक डायनेस्टी उन्होंने खड़ी कर दी है। साथ साथ वो अपने आप को जमहूरियत बताते हैं, साथ साथ वो इस्लाम का सहारा लेते हैं, तुर्की की ग्रेटनेस, मैजेस्टी, ऑटोमन, उन सब चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन एक खानदान की डायनेस्टिक कंट्रोल है जिसमें उनके साहिबजादे पे करप्शन के इल्जामात हैं, उनके सन इन लॉ पे और उनके बहुत से खानदान के लोगों पे करप्शन के इल्जामात हैं। मीडिया को टोटली उन्होंने साइलेंस कर दिया है, सोशल मीडिया को भी उन्होंने सप्रेस कर दिया है। पाकिस्तान की भी हुकूमतें जो है तुर्किश मॉडल को मीडिया या सिविल सोसाइटी कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब आप ये सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दूं कि यहां क्या वजह है। यूरोपियन भी रहा हूं, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, तो कर दूं कि ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो उनके दोस्त हैं,
لیکن اردوغان جو ہے وہ یہ سارا یورپ کی حکومتوں کے خلاف جو آگ اگل رہے ہیں ترکش حکومت کے لوگ، اس سے ان کو ترکی کی اندرونی سیاست میں فائدہ ہوتا ہے، چونکہ ترک لوگ جو ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یورپینز جو ہیں وہ بڑے متعصب ہیں، انہوں نے ان کو یورپین یونین کا حصہ نہیں بننے دیا، تو جتنا زیادہ آگ اگلی جاتی ہے یورپ کے خلاف یا مغرب کے خلاف، اتنا زیادہ ترکی کی اندرونی اناطولیہ کی جو پالیٹکس ہے، بیکاز بنیادی طور پہ AKP اپنی ساری سپورٹ جو ہے وہ ایسٹرن ٹرکی سے ڈیرائیو کرتی ہے، اناطولیہ سے ڈیرائیو کرتی ہے، تو اناطولیہ کی سیاست میں، اور استنبول جو بہت بڑا شہر ہے 2-2.5 کروڑ لوگوں کا، وہاں پر ان کی گرفت جو ہے سیاست میں مضبوط ہوتی ہے، تو یہ دونوں طرف سیاست ہو رہی ہے، سیاسی ضروریات ہیں۔ جی لارڈ احمد۔ جی میں بس وہی یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب وہ کیونکہ اپنے خاندان کی گرپ کی بات کر رہے تھے، تو گرپ جو ہے وہ یہاں پہ بھی اپنے خاندان کی گرپ ہے پاکستان کی، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی پروگرام دیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ریلیونٹ کرنے کے لیے میں بیچ میں بات کر رہا تھا۔ ایکچولی بالکل ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا، دونوں اپنی نیشنلسٹ پالیسی، دونوں اپنے ایک ریفرینڈم دوسرے الیکشن جیتنے کی یہ ساری جو ہے وہ چال تھی، اور جو ٹینشن بھی بڑی کوئی اتنی بڑی ایسے سمجھ لیں کہ اسٹورم ان اے ٹی کپ، وہ کوئی زیادہ اتنا نہیں ہے، وہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ دونوں طرف سے الیکشن، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور امیگرینٹ ڈیل سے نکلنے کی دھمکی بھی دی ہے، کہا ہے کہ آئندہ اینگلا مرکل کو ووٹ نہ دیا جائے۔ اتنی سخت گیر پالیسی انہیں کوئی مقام دلوا سکتی ہے یورپی یونین میں؟ نہیں، وہ تو بالکل ان کو اب تو ان کو خواہش بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ایسی تقریریں میں نے سنی ہیں، پہلے تو یہ تھا نا جی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2030 2040 تک ہماری جو یہ یورپین یونین کے اندر ان کے آنے کی جو نیگوشیشنز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اب تو کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کے بعد تک بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ترکی کے نیگوشیشنز ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ برطانیہ ہمیشہ ترکی کے سپورٹر رہا ہے، اور آسٹریا اور جرمنی اور فرانس نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ اب تو اینگلا مرکل جو ہیں وہ ایکچولی پھنسی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ جو ریفیوجیز اور اسائلم سیکرز کی وجہ سے 1 ملین انہوں نے 1 سال میں جو وہاں پہ ریسیو کیا، اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز کو ہوئی بھی اور کچھ ایگزیجریٹ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو الیکٹورل ڈیفیٹ بھی تھوڑا سی کمی بھی آئی ہے، اور کیونکہ اب وہ پگیڈا اور دوسری رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہی تھی، تو یہ ٹینشن بھی اگین اگر آپ جرمنی اور ترکی کے درمیان اگر ٹینشن دیکھیں گے تو وہ بھی میرے خیال میں زیادہ الیکٹورل اور ان کے اپنی الیکشنز کی وجہ سے ہوں گے، اور تو کیا کر سکتے ہیں جی، بلکہ دونوں ممالک کو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ وابستگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور حالات کا پہیہ، تعلقات کا پہیہ زیادہ تیزی سے گھوم رہا ہے، جس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ود دا پیسج آف ٹائم شاید صورتحال سیٹل ہو یا مزید عالمی سطح پر تبدیلیاں ایسی رونما ہو، جیسے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایک ایسی بات کر دی جس نے دوبارہ سے چنگاری بھڑکا دی۔ تو بات کریں گے امریکہ کے حقانی نیٹ ورک پر ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کہا جاتا ہے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں، اور اس کا سب سے زیادہ شکار پاکستان ہی اب تک بنا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایک آرٹیکل لکھا جس کے بارے میں انہی کی جماعت کی شہری رحمان یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ میں ان پر دباؤ ہو، لیکن انہی کی جماعت ان کو اب بے دخل کر چکی ہے اپنی پارٹی سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لارڈ احمد، غدار کہا جا رہا ہے حسین حقانی کو، لیکن حسین حقانی کہتے ہیں یہ پہاڑ جتنا بھی کھودیں گے چوہا ہی نکلے گا، سب ٹھنڈے ہو جائیں۔ عائشہ میرے خیال میں وہ اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا سیریس ایلیگیشنز ہیں، اور مجھے اس وقت سے پتا ہے کہ جب یہ سفیر صاحب اپنی پوزیشن میں تھے کیا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب یہ بوسٹن ہوتے تھے، ایکچولی
एक तो इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है वो अगर आप पढ़ें तो वो उनकी सीवी है। वो डेस्परेट हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और उनके एडवाइजर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ कितने लॉयल थे। वो पाकिस्तान के सफीर थे लेकिन अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, और वो उनकी क्रिटिसिज्म एक्सीलेंट लॉर्ड अहमद, एक्सीलेंट ऊपर वो पाकिस्तान स्टेट के ऊपर थैंक यू क्योंकि रियलिटी ये है, मुझे किसी ने कहा नहीं है डॉक्टर साहब, अगर आप वो पढ़े ना, और फिर क्योंकि मुझे इनका ये जब बॉस्टन में थे, मेरा एक असिस्टेंट जिसको आप जानते हैं जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वो हार्वर्ड में भी पढ़ता रहा है वो लड़का, उसको इन्होंने अपने ऑफिस में बुला के कुछ फाइलें दिखाई थी और मेरा नाम भी वहां पे मेंशन हुआ था। तो मैं ये जब एम्बेसडर थे तो उस वक्त इस्लामाबाद में देखें बहुत सारे लोग बड़े कंसर्न थे, क्योंकि दुनिया भर का जो रूल रेगुलेशन जो नॉर्म है वो ये है कि कोई भी किसी एम्बेसी में जब वीजे की एप्लीकेशन जाती है तो अपने इंटेलिजेंस सर्विसेज को, मेरी एप्लीकेशन इंडिया में जाती है तो वो इंटेलिजेंस सर्विसेज यहां से ही पिकअप कर लेते हैं। कोई भी, और मैं इंटेलिजेंस का बंदा नहीं हूं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, लेकिन इंटेलिजेंस सर्विसेज का कोई बंदा अगर एप्लीकेशन देता है वीजे के लिए तो वो अपने उस महकमे को भेजते हैं कि ये बंदा अप्लाई कर रहा है, वो अप्रूवल देते हैं तो उनको वीजा मिलता है। यहां पे आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको, एम्बेसडर साहब को फुल पावर्स दी कि यू डोंट नीड टू रिफर टू एनीबॉडी, आप वहां पे वीजा देके इनको भेजते जाए। अब एक चीज आयशा ने जो की थी उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक हक्कानी नेटवर्क है, वो ट्राइबल लोगों की बात है। एक हुसैन हक्कानी नेटवर्क है कि हुसैन हक्कानी को माजी में भी अमेरिका इस्तेमाल करता रहा और आज भी लॉर्ड अहमद रेफरिंग टू दैट। आयशा जी, आयशा लेकिन मैं ये कंप्लीट कर, एक प्लीज बात पे एक बात में कंप्लीट, एक बात में डॉक्टर साहब मुझे एक बात कंप्लीट करने दे। देखें अगर इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो वो जो चीजें वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क और दूसरी जगहों पे थिंक टैंक्स जो हैं वो जो तालिबान की बात करते हैं कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान वो सपोर्ट करता है तालिबान को, वो डॉक्टर अफरीदी की बात करते हैं, वो हक्कानी नेटवर्क की बात करते हैं। ये आदमी उसी आर्टिकल में ये सारी चीजें रिलेट करता है कि मुझे इसका इल्म था, मैं वो गलत था, ये इस तरह हो रहा था, वो हो रहा था, और उनको ये बताना चाहता है देखो मैं तुम्हारा लॉयल हूं, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर था लेकिन मैं काम आपके हक में करता रहा हूं, आप मुझे कोई जॉब दो और मैं आपके लिए सर्व कर सकता हूं। असल बात यह है, और पाकिस्तानी क्योंकि हम सेंसिटिव हैं, पाकिस्तानियों को जो है वो डर पड़ा हुआ है पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब आप भी जाके वहां पे जो थिंक टैंक्स है वहां पे जाके तकरीर करें, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई छुपी बात नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि जो मिनिस्टर साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो तकरीरें करें और कहें कि हमें ये कमीशन होना चाहिए, उनको तो अनाउंस करना चाहिए था कि मैं मिनिस्टर हूं और ये इंटेलिजेंस सर्विसेज मेरी की बात हो रही है, मैं आज इस कमीशन को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं और ये पब्लिक में होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लोगों को पता चले कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी, हुसैन हक्कानी और जो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त जो थे, ये इन्होंने किस तरीका से पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म इमेज है, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला, इसको किस तरह डैमेज किया। जी अच्छा डॉक्टर मुईद, हुसैन हक्कानी कहते हैं कि ये पनामा पेपर से तवज्जो हटाने के लिए वावेला किया जा रहा है, आपको लगता है हुकूमत संजीदा है, इस मामले से कुछ निकाल पाएगी या दबा दिया जाएगा ये मामला भी मेमो गेट की तरह? देखिए बाकी तो हुसैन हक्कानी जो चीज़ें कहते हैं वो शायद सही ना हो, लेकिन इस हद तक कि ये सिर्फ और सिर्फ पनामा केस से नवाज हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए शोर मचा रही है, इसमें तो कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। नवाज हुकूमत का या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का या PMLN का, ये जो सब लोग पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में शोर मचा रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। पहले ये केस यहाँ पे चला था, फिर उसके बाद हुसैन हक्कानी साहब को जाने दिया गया, वो भी बड़ी अजीब चीज़ थी कि वापस आ जाएंगे, अंडरस्टैंडेबल था वो वापस नहीं आएंगे, वो क्यों वापस आएंगे जब सबने अपनी छुरियाँ तेज़ की हुई थी। फिर किसी ने कुछ किया भी नहीं, जो ब्लैकबेरी का रिकॉर्ड हासिल करना था उस पर भी पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है
वो हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस है पाकिस्तानी इदारों की कि वो ब्लैकबेरी के साथ कोई इफेक्टिव नेगोशिएशन, ये कॉरेस्पॉन्डेंस उस सिस्टम में नहीं कर सके, और ये मामला बिल्कुल एक डेड चीज़ है। अब हुसैन हक्कानी क्यों कर रहे हैं ये, वो पाकिस्तान से इतने इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। ये तो लॉर्ड अहमद ने बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर दिया है कि हुसैन हक्कानी ने अपना CV लेटर पब्लिश किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और यहां पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्रोमाइज है कि देखिए पहले 8 बरस तक वो प्रो ओबामा या लिबरल रहे, जैसे किसी जमाने में वो प्रो नवाज शरीफ थे, फिर वो प्रो बेनज़ीर भुट्टो हो गए, फिर वो प्रो मिलिट्री थे, फिर वो दोबारा प्रो बेनज़ीर हो गए, उसके बाद वो प्रो जरदारी हो गए, उसके बाद वो प्रो अमेरिका हो गए, और अब वो प्रो लिबरल थे, और वो प्रो लिबरल से यहां पर वो प्रो ट्रंप होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी एक ट्रांजिशन है। यही वजह है कि बहुत से लोग उनके बहुत ज़्यादा शदीद मुखालिफ हैं। वो खालिस्तन अपने आप को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश कर रहे हैं कि देखें मैं बड़ा कैपेबल आदमी हूँ, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी रहा हूँ, मेरे CIA के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है साउथ एशिया के हवाले से कोई रोल दे दे, उनको कोई एग्जैजरेटेड रोल मिल जाए, चूंकि उनकी अहमियत जो है वो पाकिस्तान कमेंटेटर के हिसाब से है, और पाकिस्तान तो वो 2011 के बाद से आ नहीं सके, 6 बरस हो गए, तो उनकी बहुत हद तक जो पॉलिटिकल अहमियत है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। तो वो उन्होंने उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह से उसको रीइग्नाइट कर लूं। बाकी जो यहां पे ड्रामा हो रहा है ये सारा स्टॉर्म इन द टी कप है। ये तो यहां पर देखिए ब्लास्फेमी का भी ड्रामा हो रहा है, यहां पर सियासी ब्लास्फेमर कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। कितनी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, मिनिस्टर इंटीरियर भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, PTA भी बात कर रहा है, अदालतें भी बात कर रही हैं, सोशल मीडिया में भी बात की जा रही है, लेकिन कोई बंदा जिसने ब्लास्फेमी की है और सोशल मीडिया पे वो चीजें डाली हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे 21वीं सदी में कि ये पेजेस किसने बनाए हैं। और पेजेस का सहारा लेकर पाकिस्तान की जो यूथ है, 30 मिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक के ऊपर हैं, 10 मिलियन से ज्यादा लोग ट्विटर पे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, टोटली एक सियासी ड्रामा खड़ा किया जा रहा है जिसकी सारी बुनियाद यह है कि इस मुल्क के लोग अहमक हैं। उनको इमरान खान को, और सर इमरान खान मैटर नहीं करता, इमरान खान से नहीं डरते, इमरान खान से नहीं डरते, की जो ना टीवी से डरते हैं, ना टीवी से डरते हैं, ना अखबारात से डरते हैं, ना इमरान खान की परवाह करते हैं, ना शेख रशीद का कोई रोब है। ये जो सैकड़ों हजारों छोटे छोटे ब्लॉगर बैठे हुए हैं, अननोन एनोनिमस इंटेलिजेंट लड़के, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जिन्होंने MBA किए हुए हैं, फाइनेंस में हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 22 बरस से लेकर 35 बरस तक है, वो जो नौजवान यूथ है, उससे डरती है पाकिस्तान की हुकूमत। उसको हरासा करने के लिए, डराने के लिए, उसको डराने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ साइबर क्राइम इस्तेमाल होगा। कभी मजहब का सहारा लिया जा रहा है, कभी ये थ्रेट दी जा रही है कि इमरान खान को हम ये कर देंगे, कभी दहशतगर्दी की बात होने लग जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, और उसके दरमियान में हुसैन हक्कानी मिल गया तो 4 दिन अब हुसैन हक्कानी के ऊपर TV की बहस होती चली जाएगी। इस हद तक हुसैन हक्कानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ नहीं इन्होंने करना। लेकिन कसूर तो फिर अपने उन लीडर्स का है ना जिनको अवाम सिलेक्ट करते हैं कि शायद वो मुल्क के मुफाद में काम करेंगे, लेकिन वो ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं पाकिस्तान के लिए अवाम बेवकूफ है, पाकिस्तान के अवाम जितने बेवकूफ हैं, दुनिया में हाथी के पांव में सबका पांव होता है। दूरबीन ढूंढ के इतने बेवकूफ अवाम नहीं आ सकते, माइक्रोस्कोप से भी ढूंढेंगे तो जितने बेवकूफ अवाम पाकिस्तान के हैं वो कलेक्टिवली आपको दुनिया में, अफ्रीका में भी नहीं मिलेंगे। आपको दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर मोईद सियासतदानों के अप्रोच को कि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को इतने मसाइल में घेर के रखा जाए कि वो तालीम या शऊर की तरफ जाने ही ना पाए। तालीम या शऊर होंगे तो इंसान को मालूम होगा ना कि उसका फ्यूचर कौन बेहतर। 70 साल हो गए हैं, ना कहें 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम ना उनको मजहब को, पाकिस्तानी लोगों की इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं, ना कहें, ना कहें। मैं कब कहता हूं कि नहीं कर रही इज्जत या प्यार से ना ताल्लुक नहीं कर रहे उनको लॉर्ड अहमद, लेकिन पाकिस्तानी अवाम वाकई ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। आप तो बरतानिया में रहते हैं और ठहरे आयशा, आप बरतानिया में रहते हैं, वहां की ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनें इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्त किस्म की। लॉर्ड अहमद, इनको क्या हमदर्दी पाकिस्तानी लोगों से? आप जेट सेट फ्लाई करते हैं, मैं यहां रह रहा हूं पाकिस्तानी लोगों के साथ, बेचारे पाकिस्तानी लोग। वो बस भी बहुत अच्छी है, वो बस भी बहुत अच्छी है, वो बस भी टैक्स पेयर की बहुत अच्छी है यहाँ के हालात से। यहाँ के अवाम बेचारे जो हैं उनको रोटी नहीं है, हेल्थ नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, सर्विसेज नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनको बेवकूफ बना रहे, कभी मजहब के नाम पे, कभी हुसैन हक्कानी के नाम पे, कभी साइबर क्राइम के नाम पे, कभी ब्लास्फेमी के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को। वहां की बस भी बहुत अच्छी है और यहाँ पाकिस्तानी अवाम की बेबसी पे बस है। लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ये कहते हैं कि अब जो आम बयानियां है उससे थोड़ा आगे जाना होगा और उलमाए किराम को अपना किरदार अदा करना होगा, फतवों से आगे निकल गए। ब्रेक के बाद वापस आके इसी पे बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मज़ीद मामला जिन्होंने आलमी मंजरनामे पर जगह पाई वो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमरीकी साख्ता ड्रोन से भारत पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं उधर बैठे, उन्होंने ये किया कि ड्रोन हमलों के इख्तियारात पेंटागन से लेकर CIA को दे दिए। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज भेजने वाला है। इन खबरों की तरदीद कर दी गई है और कहा जा रहा है वजारत दिफा की जानिब से कि ऐसा कुछ नहीं है। लॉर्ड अहमद, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में क्या इतना आगे जा सकता है कि वाकई वो 39 ममालिक के इत्तेहाद की सरबराही राहील शरीफ को सौंपने पर आमादा हो जाए? इस तरह की खबरें बार बार जगह क्यों पाती हैं? जो पहले जनरल राहील शरीफ साहब की बात है, वो अब पाकिस्तान के नुमाइंदा वो नहीं रहे, ना ही वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह हैं। तो एज इंडिपेंडेंट बंदा वो उन पे कुछ रिटायरमेंट के रूल्स डेफिनेटली हैं जो उनको इजाजत देनी पड़ती है या इतला देनी पड़ती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। मेरे ख्याल में क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है वीजा सऊदी अरेबिया, उनके और भी इंटरेस्ट होंगे। देखें, रिटायर्ड जो भी हो जाए, कोई सियासत से हो चाहे वो मिलिट्री से हो, उनके वो एडवाइजर भी, सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो सकते हैं, वो एडवाइजर भी हो सकते हैं, वो उम्रे के लिए जाने के लिए उनका कोई और कारोबार भी हो सकता है। आपने देखा है ना कि जनरल कियानी साहब के भाई के कितने वहां पे इंटरेस्ट हैं दुबई में, तो इनके भी हो सकता है कोई ऐसी बात हो। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट कंफर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया। जब मैंने ये खबर पढ़ी थी, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी मिस्चीवियस भी बात होती है, क्योंकि जो ईरानियन भाई हैं हमारे और फिर ईरानियन सपोर्टिंग करने वाले हमारे भाई हैं, वो जानबूझ के थोड़ी सी शरारत भी करते हैं कि पाकिस्तान अपनी फौज भेज रहा है यमन पे अटैक करने के लिए। मैंने वो ट्वीट भी बाय द वे किया है और मैंने वो ट्वीट करके उसको रीट्वीट करके साथ ये लिखा है कि ये सच्ची खबर है, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये सच्ची खबर है। बहरहाल वो उसको डिनाई किया। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जनरल राहील शरीफ साहब की रेपुटेशन वॉर ऑन टेरर के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने यहां पे टेररिज्म के खिलाफ जो, और एक्चुअली कोई मैजिक उनका नहीं था, वो पूरी फौज थी, उसमें पूरे कोर कमांडर्स थे, उसमें सारा जो एक एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री का जो तरीका है वो था। लेकिन इसके बावजूद लीडरशिप अच्छी थी, उनको कोई रोल हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडा भी है ताकि ये बार बार कहा जाता है कि राहील शरीफ और उनके साथ एक टीम वर्क था। लेकिन राहील शरीफ की शख्सियत का क्रिज्मा, क्या इसको नहीं कहेंगे कि वो आज भी खबरों में है? मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि राहील शरीफ का कैरिज्मा था। देखिए, राहील शरीफ बहुत अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे, जेंटलमैन थे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, लेकिन यह है कि उनके सारी उम्र उनके कैरियर के जो बाकी ऑफिसर उनके साथ थे, जो उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, उनके सीनियर रहे हैं, वो जूनियर रहे हैं, उनके बारे में प्राइवेट ओपिनियन यही थी कि वो कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन या कैपेबल या कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के ऑफिसर नहीं थे, और वो डिसीजन मेकिंग भी उनकी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। जो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे एक प्रोफाइल बनी, देखिए नहीं, एग्रेसिव तो वो कभी भी नहीं थे। देखें, वो एज मिलिट्री चीफ भी एग्रेसिव नहीं थे, ठीक है, मतलब उनकी एक देखने में वो बड़े रोब दबदबे के थे, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं थे। डॉक्टर मुईद, बहुत से आम नहीं, ऑपरेशन ज़रबे-ए-ज़ब तो देखें नहीं, ठीक, अब देखें, हाँ, ये भी एक मजहब की तरह बना दिया गया ना कि आप इसको क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं कर सकते। ऑपरेशन ज़रबे-ए-ज़ब जो है उसको आप देख सकते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेवरल ऑपरेशंस जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने 2004 से 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ये ज़रबे-ए-ज़ब अपनी किस्म का 10वां या 11वां ऑपरेशन था, क्लियरेंस एंड होल्ड ऑपरेशन था, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में किया गया। फौजी अदालतों का कयाम में ऑपरेशन से पहले फांसी की सजा पर दोबारा से अमल दरामद। आर्मी पब्लिक स्कूल के, बिल्कुल, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद एक ऐसी इमोशनल सूरत हाल हो गई जिसमें वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो रेजिस्ट करती थीं आर्मी के रोल को या मिलिट्री कोर्ट्स को रेजिस्ट करती चली आई, उन्होंने उस वक्त मोमेंटरीली तौर पे उससे एग्री कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट से जाके बहुत हद तक उन मिलिट्री कोर्ट्स को नल एंड वॉइड करवा दिया। देखिए, वो मिलिट्री कोर्ट्स का तो इफेक्ट तब हो कि उधर चट फगनी पट म्या वाला जो चक्कर होता है कि वहां वो फैसला सुनाते, वहां वो सजा पे अमल दरामद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बहुत बड़ा प्रोसेस ऑफ अपील दे दिया गया कोर्ट्स को। मसला ही क्या है, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उसमें किसी मुजरिम को बहुत कम सजा मिलती है और किसी गरीब आदमी, शरीफ आदमी को अगर आप फंसा दें तो वो
सारी उम्र वहां से निकल नहीं सकता। ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम जो है उसकी बहुत बड़ी जो एक वीकनेस के डेफिनेशन है वो ये है। तो मिलिट्री कोर्ट्स ने जब 300-350 लोगों को ट्राई किया और उसमें से 176 या 71 को 161 को सजा हुई, तो 12 की टोटल सजाए मौत हुई, तो 12 की एक्सिक्यूशन हो सकी। और अब आप देख लें कि किस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हो रही है। और फिर असल में तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट्स जो हैं वो इतनी इफेक्टिव हो सकती कि आज आपको मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत ना रहती, लेकिन वो भी नहीं हो सका है। तो राहील शरीफ जो थे वो बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट के लिए कोई जनमन मसाइल नहीं पैदा किए। आप ये क्यों भूलते हैं कि राहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मदद की जब उन्होंने जॉइंट जुडिशल जो है जिसको JIT कहते हैं, जब उन्होंने मॉडल टाउन के वाकये के ऊपर JIT बनवाई, उस JIT से ही तो रिलीफ मिली, वरना उससे पहले तो जस्टिस बाकर नजफी की बड़ी क्लियर रिपोर्ट आ चुकी थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसके पास कोई हक नहीं था कि वो वहां पुलिस को भेजती। इन्होंने तो सारा केस ये बनाया हुआ है कि पुलिस ने वहां जाके गोली चला दी। क्वेश्चन यह है कि पुलिस के पास कोई कानूनी जवाज ही नहीं था मॉडल टाउन में जाके कार्रवाई करने का, वो एक हैरेसमेंट करने के लिए भेजे गए, ये एक पॉलिटिकल एग्जाम था। जस्टिस बाकर नजफी की जो रिपोर्ट के कंटेंट्स लीक हुए और दुनिया न्यूज ही में लीक हुए, उससे हमें यही चीज पता चली। और ये मामला बदस्तूर अब तक इस पर सवालिया निशान सब है। डॉक्टर मुईद, फाइनल कमेंट जरा लॉर्ड अहमद से ले लें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस बयान पर कि उलमाए किराम को अपना किरदार अदा करना होगा फतवों से आगे निकल के। अब अगरचे बहुत देर हो चुकी है इस बात में, लेकिन फिर भी उलमाए किराम लॉर्ड अहमद क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। वो जो उनके बहुत सारे अनपढ़ उलमा इकराम जो मेंबर रसूल पे खड़े होकर जुमे वाले दिन खुली तकरीरें करते हैं और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाते हैं और कोई कंट्रोल नहीं है, उससे लेकर जो फंडिंग आती है मदरसों में, जो उनके इंस्टीट्यूशंस में, जो वहां पे अपने प्राइवेट ख्यालात हैं उनके, जिस तरीके से एक्चुअली मिस इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट जिहाद है वो जिहाद इंडिविजुअल जिहाद है कि हमने लड़ना है, हमने ही मर जाना है, हमने ही इस मुल्क को दुरुस्त करना है। उनको एक स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काम करने के लिए समझाना, पढ़ाना, वो टेक्नोलॉजी, वो IT फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, यहां पे बहुत बड़ा डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम और बहुत बड़े एक्सेप्टेंस का जो प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट को रन करना चाहिए था। सैडली एक मस्जिद, लाल मस्जिद को अभी तक वो रिहेबिलिटेट नहीं कर सकी स्टेट, तो स्टेट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तकरीरों से कुछ नहीं होगा। बहुत आसान है कह देना कि फलां बंदा ये काम करे, इसमें तो पहले रियासत ही की जिम्मेदारी है ना कि वो एक मजमुई सोच ऐसी पैदा करे जो कौमी मफाद को तरजीह दे। फिर आपको अमन के लिए ऐसी अपीलें नहीं करना पड़ेंगी, बल्कि रियासत खुद जिम्मेदार होगी किसी को अमन देने में या दहशतगर्दी की इस अप्रोच को कुचलने के लिए इकदाम करने की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के मान।